Hello, this is Farah Haq, and today I am at the Black Box with Shahi Hassan. Shahi Hi. or Shahzad, क्या बोलूं? My friends call me Shahi, and my enemies call me Shazad. Oh no, so Shahi it So you is. need to decide what you are. Shahi it is, definitely. So Shahi, क्या हो रहा है आजकल? आजकल बड़ा अच्छा काम हो रहा है. Okay. काफ़ी मज़े की लाइव परफॉर्मेंसेज हो रही हैं और basically I'm getting back to my roots, what we started from, Yes. live performances. So बड़ा मज़ा आ रहा है आजकल, and I'm preparing new songs, training my voice, getting back into playing instruments. Alright, एक तो आपकी हमने लाइव परफॉर्मेंस यहाँ पे डेमो एंड डिस्ट्रिक्ट पे यहाँ पे देखी भी थी. So how did you feel after being there on the stage after so long? Actually, I felt really good because mostly मेरे family और friends ही आए हुए थे, तो उन्होंने तो बड़ा ही बिल्कुल, support किया. बिल्कुल, जितना भी बुरा गाया मैंने या अच्छा गाया या जैसा भी किया, तो they all loved it. They were like, Yes. they all love me, I love Yeah. them, so हाँ. I felt really good. बहुत Great. मजा आया, and it did give me a lot of confidence बिल्कुल. कि I can carry out some sort of a show. डेफिनेटली अब आपने कॉन्फिडेंस की बात की है तो कॉन्फिडेंस किस पॉइंट पे होता है कि तुम कहते हो कि ओ कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा है व्हाई वुड यू से दैट When you don't perform on stage for a long time, stage की अभी particularly बात कर रहा हूँ, तो obviously you get a bit of jitters कि यार okay, will everything be fine, will I be able to sing right, will I be able to remember the words, how will people take it, so things रिमेंबर like द that. वर्ड्स ओके सो आई वाज Once अबाउट टू आस्क यू कि गाने सीखने का जो आपका पूरा वो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है लाइक रिमेंबर द वर्ड्स जैसे आई गो बैक टू द ईयर्स ऑफ दिल दिल पाकिस्तान एंड उसकी कुछ कहानी अगर आप वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं you see, हम लोग बड़े लकी थे शुरू से ही कि we had Shoaib Mansoor with us, यस and he was like a fifth member of the band always. ग्रेट He would even suggest songs, and he would even suggest कि किस genre में गाने करो. And of course, and most of all, the most important part जो उन्होंने हमारे band में play किया था was making Dil Dil Pakistan with us. The video of it, and writing the lyrics for I think 99% of our songs. And written by him was by him. He never called himself a poet or a writer. He said, but if you give me a melody, I can write to it. अच्छा So I think बड़े humble आदमी हैं इस हाँ, लिहाज से. हाँ. He has very good classy taste in Urdu writing especially. Okay, yeah, of course we know that. And so the whole journey of Dil Dil Pakistan, थोड़ा सा अगर आप हम उसके साथ background के साथ touch base करें. I know ये बहुत आपने It was बहुत so ज़्यादा long बताया ago. होगा. It was so long ago. मुझे भूल चुका But है. let's relive it because I've grown up with that. मतलब चक्कर ये कि- हुआ है ना कि दिल दिल पाकिस्तान has moved out of being our song Yeah. to everybody in Pakistan song. Pakistan. तो And हम भी even उसको out. हाँ हम भी Abroad उसको ना also. एब्सोल्युटली Yes. अब्रॉड, हम भी उसको ज़्यादा टच नहीं करते बिकॉज वो किसी और का गाना लगता है. हम खुद उसको ऐसे सुनते हैं जैसे एक बड़ी कोई मुकद्दस चीज़ है या कोई बड़ी सेक्रेट किस्म की चीज़ है. That's good. So, That's a good way of looking at it. हाँ बट ये था कि टू स्टार्ट ऑफ विद, आई मीन विच पीपल वुड नो, स्पेशली जो वाइटल साइंस को सुनते हुए आए हैं पहले से, बट ऑफ कोर्स फॉर द न्यू किड्स, न्यू जनरेशंस जो हु नो वाइटल साइंस एंड हु नो दिल पाकिस्तान, but they don't really know how it came about. So it was once once we were recording something for television, Pakistan television. So वहाँ पे शोएब मंसूर साहब ने he saw us. Okay. So he said कि यार एक national song करना है, अच्छा. and जो कि 5-6 उसको PTV होता था 80s की बात कर रहा हूँ, in the mid late 80s. तो we were all like teenagers, बच्चे होते थे हम लोग, नए हमने बैंड बनाया हुआ था और बड़े we were popular. हमारे बैंड बनाने के रीजंस तो कुछ और थे, मगर वो नेचर ने, अल्लाह ने ऐसा डिसाइड किया कि वो कुछ और बन गए. जो what he had in plan for us, we didn't know, we were just following our path. तो उन्होंने वहाँ पे हमें he asked us कि यार एक नेशनल गाना बनाना है, नेशनल सॉन्ग बनाना है, जो कि सारे टेलीविजन स्टेशंस के कंपटीशन हो रहा था. Oh, okay. तो हमारा इस्लामाबाद से था, कराची से आई थिंक सोहेल राना साहब बना रहे थे, अच्छा. एंड कोयटा से सिमिलरली वहाँ के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स थे, वहाँ के जो आर्टिस्ट थे. तो बैंड सिर्फ एक हम ही थे, Okay. बाकी जो उस वक्त के फेमस सोलो आर्टिस्ट थे और गाने वाले थे वो कर रहे थे. तो ही जस्ट हमने खैर मेलोडी बनाई, हमने कुछ रफ से वर्ड्स भी लिखे. सो ही सेड कि यार लेट मी गेट द वर्ड्स राइट फॉर दिस. Okay. तो इनिशियली ही रोट वी लव पाकिस्तान. Okay.
वी लव पाकिस्तान टाइप की, तो देन ही सेड कि नहीं यार, ये थोड़े से जो हमारे अवाम है ना, जो मास अवाम है, दे विल डिसएसोसिएट विद दिस, तो लेट्स जस्ट कॉल इट दिल दिल पाकिस्तान. तो जब उन्होंने ये कहा तो बड़ी हंसी आई हमें, बिकॉज नॉर्मली यू डोंट से दैट, at least in our books, you don't really, you don't I mean, you connect. love your country and Yes. everything, but आप सड़क पे जाके नहीं कहते कि दिल दिल पाकिस्तान, you know what I mean? I mean, Yes, it looks definitely. funny. Yeah. So, but in any case, he wrote them and they had the magic. We were kids, we didn't know कि इतना इसमें जान होगी, इतने इसमें meaning होगी for people, and plus for especially for the youth of that time, जो कि you know हम सारे youth थे उस ज़माने में, we were the kids, तो उनके लिए एक to latch on to something कि पाकिस्तानी बैंड, उर्दू में उनके गाने and उनका national song, and you know they do things which we all do, you know, like what kids do, they basically hang out with friends, they go on bike rides, they go on, you know, they meet up with everybody, and you know basically kids want to have fun, तो वो ये कर रहे हैं, तो somehow उन्होंने बड़ा अच्छा एसोसिएट किया उससे, so that was in brief, you know, जो एक स्टोरी. एसोसिएशन तो हमें पता है बिकॉज वो बाहर की तो हमें सब नज़र आ रही थी, बट अंदर की बात एंड हाउ इट केम अबाउट, सो दैट्स रियली गुड टू नो कि किस तरह लिरिक्स कैसे हुए एंड ऑल दैट. बट उस वक्त कुछ आप लोगों को, आई एम श्योर उस वक्त तो वही होगा कि अच्छा एक गाना लिख रहे हैं और हम नहीं ऐसी बात नहीं थी, हमने उस वक्त इतना ओरिजिनल म्यूजिक हमने किए हुए थे कॉम्पोजिशंस. This was the difference between Vital Signs and the rest of the other bands of that era. कि we had a lot of original compositions. But we never thought कि ये टेलीविजन पे इस तरह आ जाएगी, you know, because टेलीविजन पे उस वक्त जाना was like a big deal. Because PTV was the only channel and they had very, I'm sorry to say, Dakhiyanusi policies of that time, you know, कि आपके इंस्ट्रूमेंट नहीं दिखाने, इस पे टेलर लिखा हुआ है, यामाहा लिखा हुआ है, या रोलैंड लिखा हुआ है. उससे क्या होता है, पूरी दुनिया में म्यूजिक वीडियोस में आ रहे होते हैं. नहीं हम फ्री की पब्लिसिटी नहीं कर सकते. I mean, come on, man. उस ज़माने में खैर अभी भी बहुत लोग फ्री की पब्लिसिटी हाँ, but अब तो you see the thing is, things have changed so drastically, like 180 degrees. Yes. You don't even need television to, you know, release your song. It's online services, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify. So, एक artist के लिए इतना easy है. They don't have to depend on those Dakhiyanusi policies. You know? I'm sorry. I mean, I have nothing against anybody personally, but PTV is what made us also. Yes, definitely. And अभी जैसे आपने social media की बात की है, तो आप मुझे ये बताएं कि how is what do you feel of social media and what do you feel कि उस ज़माने में as you said कि खाली PTV था और अब आपका क्या say है इसमें, and आप क्या, how would you take it, like social media, I think social media has more plus points than negative ones, okay, depending on who you are, okay, how you use it for your advantage, and it's, I think it's amazing. It's basically a lot of freedom for people ke, if I want to say something, you know, whatever you it can is, voice it out. I can voice it out. Yeah. पहले मैं कहाँ जाता, सड़क पे खड़ा हुआ था, चौक में खड़ा हुआ था, you know, या PTV से कहता कि यार मुझे कुछ कहने दो. That's the biggest joke of the century. तो अब ये है कि फिर और चैनल्स आए थे, you know, after PTV, and of course in the mid 90s, late 90s, social media भी शुरू हो गया था. So you had access, people had access to each and every one of you know, individuals online, and you could communicate with them, you could you know, talk to them, do more projects, collaborate, you know, तो दुनिया एक literally एक तरह से छोटी होती जा रही है. बिल्कुल ट्रू. एक्चुअली सोशल मीडिया बहुत आपको वो कर देता है. ओके, सो गोइंग बैक टू योर वाइटल साइंस डेज, ठीक है, आई एम गोना टेक यू बैक बिकॉज and Islamabad and Rawalpindi. I'm also from there, so क्या कहते हैं? You're a Pindi girl. Yes, I'm a Pindi and a Islu girl. Yes, if I can say that, yeah. And so मुझे उस टाइम में जब आप लोग सब इकट्ठे होते थे एंड ऑडिटोरियम में आप लोग गाते थे एंड ऑल दैट, वो वाइब उस टाइम पे आपकी हाई थी कि नहीं थी? अच्छा, उस टाइम में, उस टाइम के बच्चों में, ठीक है, लाइक टीनेजर्स में, और आज के टीनेजर्स में भी देखता हूँ ना, अपने people who are younger and who are in school and colleges, उस वक्त बड़ी अच्छी बात ये थी कि we had nothing else to do except if you to play music. तो literally हम सुबह से रात तक, you know, we used to play music, sleep, eat, play music, jam. That is how most of our compositions and songs came about.
ओके तो अब ये है कि मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ यंगर म्यूजिशियंस भी हैं हु आर ब्रिलियंट, यू नो, बट फ़ोन बज रहा है ये वो, तो सबके फ़ोन पहले मैं बंद करवाता हूँ कि यार अब हम जैम कर रहे हैं, ठीक है, तो लेट्स कंसिडर दिस, क्योंकि हमने अब ये चूज़ किया है कि हम इस फील्ड में आएंगे, ठीक है, एंड इसी से कमाएंगे, इसी से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे. लेट्स कंसिडर इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइव्स, मोर इम्पॉर्टेंट देन पीपल मैसेजिंग यू एंड डिस्ट्रैक्टिंग यू. तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, इसलिए मैं देखता हूँ कि क्वालिटी ऑफ म्यूजिशियंस वो नहीं आ रही जो उस जमाने में होती थी, सिंगर्स वो नहीं आ रही, दे ऑल नीड सम सॉर्ट ऑफ हेल्प टू सिंग, यू नो, दे कांट रियली कैरी अ होल शो. अभी आप देखें कितने हमारे जितने अभी नए आर्टिस्ट हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू जो वाकई बहुत अच्छे हैं, वो एक गाने से ज़्यादा बना नहीं सकते. They can't make more. So I mean, एल्बम करेंगे तो वो एक गाना अच्छा होगा, बाकी कहते हैं यार फिलर है. And they're relying on covers. हाँ, covers पे कोई बात नहीं. I mean, it's okay to do covers and introduce yourself as a new singer. Fine, but along with the covers, you must do your own music, because original music will only take you that far where you actually like to go. Okay. कवर्स में आप फिर एक कवर बैंड ही बन जाएंगे, आप फेमस हो जाएंगे, मगर कल कोई कवर नहीं किया तो आप गायब हो जाएंगे, just like everybody else. अभी हम थोड़ी देर पहले किसी और म्यूजिशियन से भी बात कर रहे थे, हम कवर्स के ऊपर बात कर रहे थे, एंड इट्स जस्ट दैट वी ऑल्सो, जब कोई नया म्यूजिशियन आता है और वो प्ले करता है, जैसे डेमो पे आके अगर कोई प्ले करता है और अगर वो अपना ओरिजिनल कर रहे होते हैं, वी लाइक oh it's nice beat, yes it picked it up, but it's gonna wait, it'll have to grow on us. बट अगर साथ ही उसी आर्टिस्ट ने कुछ वाइटल साइंस का या जुनून का या किसी और का भी उसने कुछ गा दिया, लाइक ये यू गेट इनटू द मोड. सो वी आवरसेल्व्स आल्सो द ऑडियंस, like I'm talking about myself. I understand, we are the culprits too. Yeah, yes. We also relate more to हमारे पुराने गाने, या you know. You see, the thing is, again I would say we are too distracted. Yeah. ठीक है, to give a new song enough time to sink in. कितना टाइम? मैं अपनी बात करती हूँ, अगर मुझे कोई नया गाना आप पे डिपेंड कर, देखिए अगर कोई नया गाना इज गुड इनफ, ठीक है, स्पेशली द लिरिक्स, जब भी किसी गाने के लिरिक्स आपकी जिंदगी में आ जाएंगे ना, तो वो आपके लिए हिट हो जाएगा. शायद मेरे लिए ना हो, बिकॉज मेरी जिंदगी में शायद वो वाकया ना हुआ हो, ठीक है. फर्स्ट करें कोई जिस तरह ये प्यार मोहब्बत के गाने होते हैं, यू नो, लव सॉन्ग्स, और some sort of motivational song. You know, if I'm feeling down and that motivational song sort of lifts me up, you know, so you're not down, you're already lifted up, and you will only get inspired by whatever else is, you know, inspiring you in life. So इसलिए every song, generally love songs are easier because everybody is in some sort of heartbreak. कोई ना कोई, हर कोई दुखी होता है. दुखी गाने बनाना बड़ा आसान काम होता है. वो चलते हैं यार, दुखी गाने चलते हैं, जरूर चले, इसमें कोई बट हैप्पी सॉन्ग्स भी चलते हैं, ऑफ कोर्स, यू नो, लाइक यू वांट द वेडिंग सॉन्ग्स एंड यू वांट द, बट इफ somebody, मेरे नए बच्चों के लिए मेरी ये एडवाइस है एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, इफ somebody wants to make a motivational song or a national song, जरूर बनाए, मगर नेगेटिव लिरिक्स ना यूज करें, ओके, नेगेटिविटी ना दिखाएं, होप दें, ठीक है, क्योंकि हम हर रोज टीवी चैनल्स पे देख ही रहे हैं कौन तबाह हो रहा है, कौन कितने लोग क्या खा रहे हैं, कितना पैसा पाकिस्तान से लेके जा रहे हैं बाहर, क्या कर रहे हैं, वो हर रोज देख रहे हैं हम, यू नो. तो व्हाई गिव देम द सेम थिंग इन योर सॉन्ग, बट टेल देम लाइक फाइन, दिस इज ऑल फाइन, बट वी विल राइज अबव इट. आप जितने वाइटल साइंस के गाने देख लें, ये मैंने हम अपने लिरिसिस्ट जिसने शोएब मंसूर साहब से ही मोस्टली, एंड हसन अकबर कमाल जिन्होंने जीतेंगे लिखा था, उन्होंने कोई नेगेटिव बात नहीं की. मौला में भी अगर आप देखें, वो भी हसन अकबर कमाल साहब पे लिखा हुआ है, उन पे भी उन्होंने एक दुआ मांगी हुई है. उसमें ये नहीं कहा कि यार हम लुट गए, हम मर गए, हम ये हो गया वो हो गया, ठीक है. एक तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग दैट यू नीड टू पुट आउट, व्हिच इज व्हाट पीपल वांट टू लैच ऑन टू. ओनली देन यू विल गेट अटेंशन एज अ मोटिवेशनल और अ नेशनल सॉन्ग, यू नो, एंड मेक इट फ्रॉम हियर. डोंट जस्ट मेक इट यार आजकल नेशनल सॉन्ग्स बहुत हिट हो रहे हैं, मैं भी डाल देता हूँ. इट्स दैट्स कमर्शियलिज्म. But the person who's made it from here is not a commercial person. He portrayed his real feelings. ये मेरी एडवाइस है, स्पेशली फॉर न्यूअर किड्स, चाहे वो लव सॉन्ग ही बनाए, जो भी बनाए, ठीक है, उसके लिए दे नीड टू ब्रिंग आउट देयर फीलिंग्स. वो कहते हैं ना, टू प्ले द ब्लूज यू नीड टू फील द ब्लूज, एंड पैशन नजर आएगा. एंड जब तक आप फील नहीं करेंगे, जब तक आप सोलफुल नहीं होंगे, ठीक है, आप में सोल नहीं होगा, आप तो आप क्या गाना बनाएंगे? बिल्कुल. वो एक, यू नो, सतही सा गाना होगा जिसमें आपको उल्टी सीधी हरकतें करनी पड़ेंगी टू अट्रैक्ट अटेंशन,
ठीक है, उसमें ना लिरिक्स होंगे, उसमें आप लोगों को नचा देंगे Yeah. कि वो शायद उसी से चल जाए। तो ये जो हमारे अक्रॉस द बॉर्डर मीडिया इज फुल ऑफ दैट। Yeah. तो पाकिस्तानी म्यूजिक है इसलिए अच्छा कि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है। एज अ न्यू आर्टिस्ट मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं 10 लड़कियां नचा दूं उसमें या 10 लड़के नचा दूं, बिल्कुल, जो भी एक लोगों को अट्रैक्ट करता है। अगर मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स यू हेयर जो बड़े हिट होते हैं, ठीक है, एंड यू सी देम, यू डोंट सी देम, यू हेयर द ऑडियो ओनली, दे आर very ordinary. That's why this is disappeared. The moment that actress or that dancer or whoever else is in it is gone, they endorsement disappear. आ जाती है एक, yeah. But very few songs, there are Yeah. songs of course, Yeah. which remain with you for years and years to come and go into generations with you. So those songs need to stand on their own. Yeah. They need to inspire a visual in your head. Yes. rather than Correct. to see visual जिससे मैं associate करूँ उस गाने Associate. क्योंकि वो किसी और का विजन है, मेरा विजन उससे बेहतर है जो मुझे वो गाना देगा। बिल्कुल। ओके, सो गोइंग बैक टू जो अभी आप बात कर रहे हो, आई थिंक पैशन किसी भी चीज़ में अगर हो, छोटी से छोटी चीज़ में वो नजर आता है आपके काम के अंदर, मतलब Absolutely, एवरीथिंग यू नीड दैट पैशन, सो वेरी ट्रू ऑन दैट। पैशन इज व्हाट मेक्स यू अचीव द इम्पॉसिबल। जो चीज़ें आप समझते हैं आपकी रीच में नहीं है, तो वो पैशन से ही अचीव होती हैं, क्योंकि पैशन गिव्स यू अ ड्राइव अगेंस्ट ऑल द नेगेटिविटी, ऑल द क्रिटिसिज्म विच इज अराउंड यू। एक तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है, फिर एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म होता है कि जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, बिकॉज मे बी इफ आई डोंट लाइक यू आई क्रिटिसाइज यू, व्हाटएवर। तो खैर यही इंसान की बीमारियां हैं साइकोलॉजिकल, जिनसे इनका हमें बचना चाहिए। और पैशन एज यू सेड इज द राइट थिंग टू डू। तो कभी ऐसा बिल्कुल कोई ऐसा पॉइंट आया आपकी लाइफ में कि इतना आपको कुछ नेगेटिविटी की वजह से यू लाइक आई नीड टू बी इनसाइड, और नो यू डेल्ट विद इट? टू बी ऑनेस्ट मेरी लाइफ में एक छोटे मोटे नेगेटिव पॉइंट्स हर किसी की लाइफ में आते हैं कि आप किसी वजह से सैड हैं, कोई आपका रिलेशनशिप, कोई आपका रिश्तेदार, कोई जिस वजह से आएगी, जो वर्ल्डली चीज़ें होती हैं जिनसे आप सैड होते हैं। बट एज अ करियर तो मेरा करियर अल्लाह का शुक्र है हमेशा से यूं ही जा रहा है। जो मैं करना चाहता हूँ वो उसमें मुझे इज्जत देता है, उसमें मुझे जो मेरी एफर्ट होती है उसके लिहाज से, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा ही वो देता है। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कहीं पे नीचे जा रहा है। Okay, because I just wanted to, for the younger generation out there to connect with you, because you've been through so much, so many decades now, so so वो connect करें कि okay, it's okay to be low at some time and it's okay to have that high, because आप जैसे अगर हम लोग आप उनको बताएंगे, so they'll connect more with you कि okay यार ये ऐसा होता है and all that। देखें, आपकी ज़िंदगी के जितने हायर लो पॉइंट्स हैं ना, वो आपकी अपनी वजह से होते हैं। सो वी कांट ब्लेम पीपल एंड इवेंट्स एंड whatever else has happened in my life. Like for example, if I had a bad childhood because of my parents, I can't keep on blaming them, because I'm born with my own head, my own hands, feet, where I can do my effort, and learn from the mistakes they make. Because once you pass your teenage, your parents start to look like kids to you. उनको भी आप समझना शुरू कर देते हैं, अच्छा यार, this is where they are coming from, that's why they are advising me to do this, and they only mean well for you. तो उन बेचारों के जैसे भी हालात थे, जो भी थे, जिसमें उन्होंने आपको बड़ा किया, चाहे बहुत अच्छे भी होंगे, ऐसी बात नहीं, मैं नहीं कह रहा सबके बेचारों को बुरे हालात होते हैं, बहुत अच्छे पेरेंट्स भी होते हैं, वो अपनी ज़िंदगियाँ डेडिकेट करते हैं अपने बच्चों के लिए, बट कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं कर सकते, जो उनकी मजबूरियाँ होती हैं, जो भी उनके शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, क्योंकि वो भी इंसान है, ठीक है ना। तो फॉर किड्स ऑफ कोर्स पेरेंट्स आर लाइक दीज रोल मॉडल्स, कि जो एक परफेक्ट चीज़ है मेरे लिए, फादर मदर, ये परफेक्ट कपल है, एंड दैट्स हाउ यू सी इट एज अ किड, बिकॉज आपको यू डोंट नो बेटर। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इससे मुझे सिर्फ एक बात ख्याल आ रही है, एज हम भी अपने बच्चों को यही बोलते हैं, तुम लोग माँ बाप बनोगे ना, तब तुम लोगों को समझ आएगी, बिकॉज दे डोंट। जो ही आप प्रैक्टिकल लाइफ, लाइक फॉर मी एट लीस्ट, in my mid to late teens, I was playing in a band, traveling across the country at least at that time, and then across the globe. तो बड़ी जल्दी प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया था, and I used to start missing my father. And हालांकि जब आप घर में होते हैं तो आपकी और फादर की थोड़ी बहुत चल रही होती है कि भाई तुमने ये नहीं किया, मैं क्यों ये करूँ, things like that. But of course then my love for him even grew more. I used to go back and hug him and everything, and he used to miss me also.
तो क्योंकि मेरे फादर बड़े एक ही वाज फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड, हाँ तो बड़ा उनका एक उन्होंने एक फर्म सी अपनी वो poised, बनाया हुआ था हाँ कि ही वाज आपके poised as dad। very firm person एंड वो काफ़ी हमें सीधा रखते थे, क्योंकि जब भी वो ऑफिस आए तो हम सारे खड़े हों टू रिसीव हिम एंड देन ईट विद Yes. हिम ऑन द टेबल, which was nice. Which I was miss that. nice. Yes, definitely. We also like आजकल की जो अब हम पेरेंट्स हैं we want क्या है यार, we want that dinner time and breakfast time and lunch time, बच्चे हमें वो थोड़ा सा ही टाइम दे दें तो बहुत डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी है, but उस because टाइम पे हाँ, तो बहुत था। बिल्कुल, Yes. क्योंकि once you grow up, that discipline which you get taught as kids comes of a lot of use for you in practical everyday life. Because discipline नहीं होता तो इंसान बिखर जाए, बिल्कुल बिल्कुल ही वो मतलब कि वो किसी काम का ना रहे। तो डिसिप्लिन से ही डिसाइपल वर्ड निकला हुआ है, तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस डिसिप्लिन फेथ क्या यूनिटी फेथ डिसिप्लिन हमने डिसिप्लिन फेथ यूनिटी कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद। कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद दिल दिल course. पाकिस्तान। इसी उस पे नोट पे अगर आप हमारे लिए कुछ गाना चाहेंगे बिल्कुल जी, ज़रूर। गिटार आपके पीछे है, इफ यू कैन ग्रैब इट एंड मैं कोई इतना अच्छा सिंगर नहीं हूँ, आई एम स्टिल ट्राइंग टू इम्प्रूव। प्ले करके आप हमें कुछ सुना क्या रहे हैं? एक वाइटल साइंस का गाना है, Okay. composed by Rohel, Junaid and myself, Alright. and Shoaib Mansoor Saab wrote the lyrics too. ओके And I sang that here the other Alright. night Okay. at the district. बड़ा मैंने रीडिस्कवर किया खुद इसको बड़े अच्छा से बाद। ओके सो Because लेट्स when I लिसन was- टू इट एंड देन वील टॉक अबाउट इट Sure thing, sure चलो thing. लेट्स डू नाराज तुम नाराज हम, कैसे मिटे फिर दूरियां, हम मुंतजर तुम बेखबर, दोनों की है मजबूरियां, नाराज तुम नाराज हम, कैसे मिटे फिर दूरियां, हम मुंतजर तुम बेखबर, दोनों की है मजबूरियां, हाँ हाँ हाँ। इतना ही गाऊंगा, ज्यादा ना गाऊंगा। सही सही फिर मुझे ऑटो ट्यून की जरूरत पड़ेगी। नहीं इतना ही परफेक्ट है, तो इसके बारे में इसका कुछ बैकग्राउंड बताएं। आई मीन इसका बैकग्राउंड क्या बताऊँ, एक बड़ी अच्छी ट्यून थी एंड एक्चुअली इससे एसोसिएटेड एक इवेंट आपको बताता हूँ मैं, बिल्कुल जो एक दफ़ा वी वर हैविंग अ शो इन टोरंटो, ऑफ कोर्स वाइटल साइंस, एंड एक बहुत हार्ड कोर फैन थी, एक लड़की छोटी सी हमारी थी, सामने खड़ी हुई थी, वो जुनैद को एक बैनर दिखा रही थी कि ये करो ये करो ये करो ये करो, तो जुनैद वाज इग्नोरिंग हर बिकॉज वो 10-12 हज़ार लोग थे वहाँ पे स्टेडियम में, तो वो ऑब्वियसली ही कुड नॉट रियली डू दैट, तो सडनली आफ्टर लाइक अ फ्यू सॉन्ग्स शी वांटेड सम सॉन्ग, आई डोंट नो व्हिच सॉन्ग शी वांटेड, वो बैनर दिखाई जा रही थी, तो ही वाज इग्नोरिंग हर, तो eventually she stood up after a song and she tore the banner in front of us, and everybody was like shocked, like, "Whoa, what happened here?" So and suddenly we started the song. नाराज तुम, अच्छा तो वो इतना खुश हुई वो, उसके लिए फिर पूरा जुनैद ने डेडिकेट कर दिया। मगर वो गाना नहीं गाया आप लोगों ने, कौन सा? जो वो कह रही थी, पता नहीं, वो याद नहीं कौन सा गाना। उसको आपने, बट चलो दैट्स गुड यार। So she was happy and हाँ so आपने कहाँ इंटरनेशनली where else have you guys played, where कहाँ गए हुए हो? The only place we haven't played Yeah, okay, is let's probably put it that way, China, yes. maybe. Ah. But Australia, USA, Okay. Europe, Great. most of the countries in Europe, wherever they're Pakistanis, because obviously our music is popular in Yes, Pakistanis. yeah. You know. So मैं कोशिश ये कर रहा हूँ हाँ. कि since Junaid not being there, so I am trying to reintroduce these songs to the newer generation. So people who know of Vital Signs, Yes. people who maybe know a few of our songs like Dil Dil Pakistan and maybe one or two other, but they don't really know who these people were, because उनके पेरेंट्स सुनते थे, या बड़ा भाई सुनता था, या बड़ा कज़न सुनता था, या इस तरह करके ना, ये बड़ी बाजी सुनती थी, but they don't really know what Vital Signs music was, Yes. because उन दिनों में ये present होता था, videos would come out different ways, we would do shows, but अब कोई ऐसा medium नहीं, unless by choice they put it on. Yes. तो अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि I want to reintroduce this music into the newer generations. Great. Because this music has very deep roots, in their families, in बिल्कुल. their
you know, elders and everything. बिल्कुल. So it'll be good fun and it'll be something good to listen to. Yes. You know. दूसरी चीज़ So, मैं ये कहना चाह रहा हाँ. था कि everybody these days is trying to associate or do something regarding that passion thing you mentioned. तो मेरे दिमाग में ये बात घूम रही थी काफ़ी देर से कि पैशन लोगों का इस वक्त फेमस होना है, हाँ. you know, फोकस उनका. Yes. उनका फोकस अपने काम पे नहीं है. वो काम भी इसलिए कर रहे हैं कि मैं किसी तरह इसको पोस्ट कर दूं ऑनलाइन. You know what I mean? कि जिससे मुझे लाइक्स मिल जाएं, जिससे people will accept me. Yes. You're fine. You're born fine. You're a creation of, you know, the perfect being. And तो आप जैसे भी हो, जो भी हैं, आपके talent, you're born with a lot of talents. You just need to think and exploit them and be passionate about that more than anything else कि आप ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं कि मुझे लोग एक्सेप्ट कर लें. लोग accept आप अच्छा काम करें, हाँ. आपको लोग क्या, आपको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करेगी, आपको नेचर एक्सेप्ट करेगा. बिल्कुल. आपको मनी, फेम एंड व्हाटएवर एल्स यू आर लुकिंग फॉर विल कम विद इट. Yes. With good work, you know, that's like a spin-off of good work. Definitely. And passionate work, that is. And we same like love yourself. It will show. मतलब कि पहले अपने आप को करो and then you don't have to show out in social media that way. नए के बारे में कुछ मुझे बताएं आज. अच्छा, I'm writing a lot of original music. Okay. And very soon I'll be coming up with it. And I will also, of course, I'm basically जो मेरा ज़्यादातर time spend होता है वो lyrics के ऊपर होता है. Okay. You know, I sit with my very, you know, dearest person Ania, Okay. and write all the lyrics with her. All And right. she writes them, of course, and I'm sort of, you know, making suggestions. तो एक मोटिवेशनल गाना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जो Okay. कि मेरे दिल में थॉट्स हैं. All right. And Okay. मेलोडी बड़ी अच्छी उस तरह की है. तो hopefully I'll share it soon. अभी वो lyrics wise अभी So बन रहा है. hopefully next year 2021 में it's gonna come out. Inshallah, yeah? for sure. Inshallah. Okay, that's great. Okay, so reinvent जो आपने बोला कि अपना vital signs का, उसमें से कोई ऐसी चीज, like are you also planning to remix a few of them or It's just not- do the original one again? No, it's not reinventing, it's representing Okay. once again. Okay. All right. You know, ताकि लोग दोबारा सुन सकें. Yes, I have created some very interesting sort of musical pieces around the same songs. उनके genres भी थोड़े बहुत मैंने change किए हैं. उनको थोड़ा सा update किया है musically, you know. And Okay. हालांकि वो अभी भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, और जो हम लोगों ने उसको काम किया था, you know, बड़ी डेडिकेशन, बड़ी मेहनत से किया था. बड़ी बड़ी रातें हमने गुजारते थे हमें ये गाने Okay, पे. okay. बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, आर्ग्यूमेंट्स होते थे हमारे हाँ. कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं होगा. But you know, because we were all passionate about them, Yes, you know, yeah. all those songs. And Definitely. each one of the songs in our albums, we used to pay most attention to. अभी मैं देखता हूँ a lot of artists who come to me कि शाही भाई, शाही अंकल, whatever, ये हमारा गाना प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो मैं कहता हूँ, मैं क्या, what about the next one? He said, next Yeah. one ये है, बस ठीक है. It's a filler. Why? Why? Why do you want to do something great and then do something, you know, substandard? Every song should have a Yes. story. Yes. I mean, you should only make a song when you have something to say. Yeah. You know, don't make a song with somebody else's words. You know, even with our song, we used to write the words. चाहे जैसे भी उल्टे सीधे होते थे. अच्छा. So then okay, Shoaib हाँ. would carry the thought. Okay. Sometimes he would completely change it because then those were his thoughts, you know, Yes. which he wanted to come out through us. And rightly so, he was a very experienced person, and he is a genius in what he does. So he used to use us as a medium for his communication also. But generally, अगर फर्ज करें मैंने एक गाना लिखा हुआ है किसी की आंखों के बारे में, so he would make it slightly more, you know, nicer in a Okay. way that वो बिल्कुल ही blatant ना लगे. Okay. You know what I mean? All right. So अभी जैसे आप बोला है कि लोग आते हैं, they come to mentorship पे. I wanted to ask you, with Pepsi Battle of the Bands में you've been a very main person over there, and you've mentored a lot of musicians, and so what was that journey, and how do you connect with the younger generation? I connect very well with the younger generations because they face the same problems we used to face, you know. And उसमें से सबसे जो important problem they face is distraction, lack of time, lack of attention. You know, music, to create music, creativity, you know, any sort of creativity, in fact, requires long periods of focus and attention. You know, to be given it to it. जिस तरह फर्ज करें अगर मुझे कभी कोई गाना कंपोज करना होता है या कोई चीज़ बनानी होती है या कुछ मिक्स करना होता है या कोई नई चीज़ मैं क्रिएट कर रहा होता हूँ म्यूजिकली, तो आई पुट माई फोन ऑफ एंड आई लॉक माई स्टूडियो एंड आई टेल एवरीबडी यार कि प्लीज़ इस टाइम से मुझे तंग ना करो. I empty my head, Yes. you know, of all the worldly thoughts and external thoughts, and I let the creativity settle in.
ताकि आप कुछ कर सकें। अगर मैं उस पे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या इस पे लगा रहूँगा कि लोगों को जवाब देता रहूँगा तो मैं काम क्या करूँगा? तो कई लोग जो मेरे दोस्त हैं, you're very anti, आप जब इसीलिए फिर आपको कभी फोन करना ही नहीं चाहिए, आपके पास स्टूडियो में ही आना चाहिए। हाँ, मैसेज कर दें एंड आई विल गेट बैक टू यू ASAP। Perfect. Okay. So, okay, इसी पे before we wrap it up and we do one more song with you, I want you to tell me like an incident or something that's very close to you also in पुराने दिन और नए दिन, something that happened in one of the shows and a fun incident that you अभी तक आप बैठ के हंसते हैं, सोचते हैं उसके बारे में। वैसे तो बहुत इंसिडेंट्स हैं और कोई ऐसा जो अभी तक आपने नहीं बताया हो किसी को and our viewers would love to like know। अच्छा, एक इंसिडेंट ऐसा है कि जो हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। Okay. We never expected that. Alright. जब हमने ये दिल पाकिस्तान रिलीज किया, when we worked for like a week on audio and video and पूरे शहरों में भागते फिरे हम, पूरे पिंडी इस्लामाबाद ऊपर नीचे। शोएब मंसूर साहब ने हमें इतना भगाया, कभी कहाँ, कभी बाइक से गिरे, कभी कुछ हुआ, चोटें भी लगी, मगर ही सेड कि यार आई मीन फॉरगेट अबाउट चोटें, राइट नाउ लेट मी शूट इट। खैर सारे इंजर हुए, कुछ किसी के हाथ पे पट्टी बंधी, किसी मुंह पे। हम फिर रहे थे, तो खैर जब वो रिलीज हुआ तो उस वक्त VHS टेप्स होती थी, तो मैंने अपने घर में रिकॉर्ड किया एंड फिर हमने कहा कि यार फलाने घर बैठते हैं और वहाँ बिग स्क्रीन पे दोबारा से देखेंगे जैसे वो ब्रॉडकास्ट हुआ। तो हमने खैर टीवी से रिकॉर्ड किया उसको, बाइक साइड से बैठे एंड वी वर गोइंग, ठीक है। तो मैं था, फ्रेंड ऑफ माइन वाज ड्राइविंग द बाइक, आई थिंक जुनेद वाज राइडिंग द बाइक, मैं पीछे बैठा हुआ था एंड इंस्टेंटली people recognized us. Oh, okay. And cars started following us. People were like, oh shit. I mean, excuse my language. Like, oh wow, this is amazing. कि एक सेकंड में लोगों ने इतना पसंद किया है कि they recognize कि ये तो वो लड़के जा रहे हैं। We just saw them in the video. तो फटाफट आप हीरो बन के यूं चलो अभी बाइक को ऐसे ही चलाते हैं, हम हीरो बन गए हैं। समथिंग उस वक्त हिट हुआ था? नहीं, हीरो तो नहीं बन सके थे बिकॉज इतनी इंडियन मूवीज देखी नहीं थी हमने उस जमाने में। बट उसमें हीरो सिर्फ इंडियन मूवीज में होते हैं, हमारे कहाँ, हम तो सारे विलन्स हैं। हम सारे विलन्स हैं क्योंकि हम सच बात करते हैं। तो बट द थिंग इज नहीं, हीरो तो नहीं बनेगा, बट वी वेंट एंड वी वर शॉक्ड एंड लिटरली उस जमाने में इट वाज डिफिकल्ट टू गो टू बाजार एंड टू आवर फेवरेट शॉप्स और सुपरमार्केट्स, वी वुड गेट मॉब्ड। Wow. Especially in Karachi, तो उस वक्त we could not get out on the street. People start following us, not in a bad way. वो बेचारे, they loved us and we never thought badly of them. But then at times it used to get too much. जिस समय मैं कराची शिफ्ट हुआ तो मेरे घर के बाहर एक मजमा लगा रहता था। तो शुरू में तो आप चले, आपने कहा चलो अच्छा है यार, लोग आए हैं, ऑटोग्राफ दे लो, बच्चे हैं ये वो। But after like a few days, few months, it became bothersome. Because I'm a private sort of person in my private life, I don't really portray that on social media, जो भी है, even whatever. तो उसमें थोड़ा सा ना एक वो in private, तो एक दिन मैं क्या अपनी गोल्फ क्लब उठाई और बाहर गया। मैंने कहा भाई मेरी जान छोड़ दो, मगर वरना ये मैं घुमाना शुरू कर दूँ। तो वो भी सब बोले what we came to see you and वगैरह वगैरह, हमारे नेबर्स के ये रिश्तेदार है, वहाँ से आए, वहाँ से। मैं कह रहा that's very good, but please I have a life too. I am not an object कि जिसमें आप आके पीछे पड़े रहें कि यार अब ये आ गए, अब ये आ गए, अब ये आ गए, ठीक है ना। मैं इस काम के लिए नहीं बैठा हुआ, ठीक है। वो आपने ये काम करवाना, प्लीज कम टू आवर शोज, वहाँ पे हम आपको जितने आपको ऑटोग्राफ चाहिए होंगे वो चाहिए होंगे। Yes, definitely. We know you are a very private person and thank you so much for giving us this time over here at Demo. We definitely know कि आप बहुत private person है and you've given us time at Black Box today. You're most welcome, ji, and I think this place is such a nice place and such a good thing for especially people who are trying to do something in music. Yes. New people and new kids. Yes. And they all must come here. They all must get in touch with the people at the Demo Music Room. Yes. And come here and perform. If you have something to say, this is the platform for you right now. And although I love the district and it is so versatile. Yeah. It's like and आजकल because of COVID times it has the outdoor space, so it's just gives you the vibe. Absolutely. Definitely. Okay, any last message you want to give other than this to your fans out there? देखिए, for especially younger generations, I have a message. क्योंकि वही हमारे future के लोग हैं। अब जो हम लोग हैं, हम लोगों ने अपनी एफर्ट्स कर ली हुई हैं, हम लोगों ने काफ़ी कुछ बना लिया है, अभी भी कर रहे हैं। बट द थिंग इज दे आर द रियल फ्यूचर, तो उनको ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए व्हाट देयर पैशन इज, ठीक है। एंड इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ नॉट फॉलोइंग हिज पैशन, you are to be blamed,
more than maybe people who are corrupt in this country, more than people who are maybe doing the wrong things and chori chakari jo bhi kar rahe hain. Because you are not doing anything about it, anything about your passion. You're not doing anything about all the evil in this society. You're just maybe sitting online or something and trolling people and bragging about it. So get out there and do something. You will be surprised how much one person can make a difference. So that's my message for our younger people. चाहे आपका म्यूजिक पैशन है, चाहे आपका राइटिंग है, चाहे आपका पॉलिटिक्स है, चाहे जो भी है, उसमें आओ और एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके आओ, and you will get tremendous amount of success. Great, that's a great message, even for me also. I need to follow my passion. Thank you so much, Shahi. Thank you. Most welcome. Have a very good Pleasure. evening.